His presence. His presence. His presence. His presence. Worship. Worship the Lord. Worship. Worship. Mighty revival. The mighty revival. परमेश्वर ने तेरे दुश्मनों को तेरे सामने से हटा लिया है। तेरे दुश्मन कभी तेरे पीछे नहीं लगेंगे, तुझे छू ना पाएंगे। The Lord has scattered your enemies. The Lord has scattered your enemies. They will never be able to touch you. A fresh fire. A fresh fire has come upon the church. The hungry church. The hungry bride. A bride who is hungry for her bridegroom. Rashomarosti keribot rostama rostia. Jesus. एक ताजा अभिषेक उन पर उतर आएगा जो परमेश्वर के लिए भूखे हैं, जो कलीसिया परमेश्वर के लिए भूखे हैं, जो दुल्हन अपने दुल्हा के लिए प्यासी है। उन पर ताजा अभिषेक परमेश्वर उंडेल रहा है। ग्रहण करो। Receive it right now. My brothers and sisters, I see a fresh revival fire here in Goa. Here in Goa, which will spread out to all the states of India. A fresh revival fire. For the Lord has shut the mouth of your enemies. For the Lord has shut the mouth of the lions. And a fresh fire is coming upon you here. Every congregation that is hungry for the presence of the Lord, I prophesy today. Only those who are truly hungry for the presence of the Lord will experience a fresh fire from the Lord. And the anointing of the prophets that have gone, that anointing, that mantle is coming upon you. Rashkoribas robos tremende verbrus tremendo prosva rosia. Rako yasu arrimo romos tarrakie. There's a fire in this place. ग्रहण करो, ग्रहण करो।
सच्चे प्यार से, सच्चे दिल से, सच्चे मन से उसकी खोज में है। परमेश्वर उन पर एक ताजा अभिषेक देगा। Rashko remasto ramako rumbo roshte resti rasto nam rasti rema rostako prasto nam rasti rema. Open your mouth. Rashko Jesus.
God is manifesting His presence. Amazing. Just receive it.
just want to hear your voice. We have come here for you. We have come here for you to worship you. We wait on you. We wait on you. हम प्यासे हैं सिर्फ तेरे लिए, इंतजार है सिर्फ तेरा मेरे पिता, इंतजार है सिर्फ तेरा मेरे पिता। मेरी नजरें तुझ पर है हमेशा हमेशा, तेरे प्यार में भर दे मुझे यीशुआ यीशुआ। Yes, God. Yes, God. We wait on you, Holy Spirit. We wait on you. Oh yeah. Oh yeah. We wait on you, Holy Spirit. We wait on you. इंतजार है सिर्फ तेरा मेरे यीशु मेरे यीशु। इंतजार है सिर्फ तेरा मेरे यीशु मेरे यीशु। पवित्र आत्मा की बारिश, पवित्र आत्मा की बारिश हमारे गोवा में इस तरह गिरेगी जैसे कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। Yes. परमेश्वर आज खास गोवा के बारे में बात कर रहा है। हाँ, चौंकते हो ना परमेश्वर ने आपको गोवा में क्यों लाया है? चौंकते हो ना कि आपको परमेश्वर ने गोवा में क्यों पैदा किया है? Many sons and daughters are being raised up in this land of Goa. बहुत सारे बेटे और बेटियां इस गोवा के गांव में, हमारे शहर में, हमारे गांव में परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। पवित्र आत्मा आप पर आ गया है। जो तैयार है उन पर परमेश्वर की अग्नि ऐसी उतर आएगी, कोई भी तुझे रोक न पाएगा। Nobody will be able to stop the fire that is going to come upon you. You see, you're feeling the fire.
गति रखना ये समय नहीं है। दुनिया को फर्क दिखाना है। आप कौन है, मैं कौन है। परमेश्वर आपको एक रोशनी बनकर इस अंधकार में भेज रहा है। God is sending you as light in the darkness. Don't get mixed with your darkness. Don't get mixed with your darkness. उनके अंधकार में भाग न लेना। आप अलग है, आप अलग है। You're different. You're different. You're carrying the fire of God. You're different. आपके अंदर परमेश्वर की अग्नि है। Just worship. Just worship. Praise. Revival is not about a feeling. Revival is about living. Revival is not about a feeling that you feel in a church. Revival is not about a feeling that you feel in the church. It's about living a life that is full of Christ. It's about living a life that is full of Christ. जागृति सिर्फ एक भावना नहीं है जो आप महसूस करते हैं कलीसिया में संडे। जागृति परमेश्वर के लिए जीना सही जरूरी है। परमेश्वर की जिंदगी हमारे जीवन में जीना यही सही जागृति है। When your life becomes one with Christ, when you start living as Jesus lived, you start loving people, you start blessing people. That is true revival. When your heart gets full of love and the sweetness of our Lord Jesus Christ, it is reflected in your living. This is true revival. सही जागृति यही है जब आप एक दूसरे से प्यार रखते हैं, प्यार करते हैं, तुम्हारा हृदय दया में भरा हुआ परमेश्वर की खुशबू तेरे जीवन के द्वारा लोगों को महसूस होती है। यही सही जागृति है। Revival is not about clapping hands in the church, making a noise in the church, or even playing music. Revival is not about a noise that you make. True revival is about living a life that is full of Jesus. Revival. सही जागृति सिर्फ कलीसिया में रहकर ताली बजाना, आवाज करना नहीं है। सिर्फ गाना गाकर म्यूजिक बजाना नहीं है। सही जागृति
जब हम यीशु मसीह का जीवन हमारे जीवन के द्वारा जीते हैं, और यही जागृति परमेश्वर आपके जीवन में ला रहा है। Amen. The Lord is bringing this revival in your life. Yes, Lord Jesus. Goa will see this revival. Thank you, Jesus. People from out of Goa are going to experience this. Revival will spread in India. It will spread in India. गांव गांव में, गली गली में ये जीवन का झरना बहना है. This river has to go from here into the other states of India. It has to spread. Jesus, shukore mashto besiki yamasoneki. कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत या होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत या होने पर है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है. Jesus, thank you, Lord. We be seated in the presence of the Lord. आप बैठ सकते हैं. Stay in the presence. अपना फोन्स प्लीज साइलेंट मोड पर रखिए. Stay in the presence. Please do not get distracted. This is how we honor the Lord. सच्ची आराधना यही है जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं. We honor Him. Wherever the Holy Spirit is honored, He comes. जहाँ पर पवित्र आत्मा को आदर मिलता है ना, वो वहां पर आता है. परमेश्वर का हमारे बीच में आना हमारे म्यूजिक पर आधारित नहीं है, हमारे गाने पर आधारित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर एक के मन को, हर एक के दिल को जांचता है, पहचानता है, हमारे मोटिव्स को जानता है. क्यों करते हैं हम, क्या हम करते हैं, क्यों करते हैं, उसको सब कुछ पता है. हमारे मन को देखता है हमारा परमेश्वर, और जहाँ पर उसके लिए भूख है वहां पर ही आ जाता है वो.
हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे बच्चों को यूज कर रहा है, बड़ों को भी यूज कर रहा है। क्योंकि अभी वो सीख गए हैं कि आराधना करना दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, वो सीख गए हैं। इसलिए जब वे आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, यहाँ पर वो परमेश्वर पर नजर डालकर करते हैं, उसको खुश करने के लिए। And I believe the Lord has allowed this lockdown to check our hearts, what was going on, and to bring out the true worship from our hearts to Him. Because the church had forgotten what church was all about. कलीसिया भूल गई थी कलीसिया क्यों है। And I believe in the lockdown something happened in our hearts that opened our eyes. And now the churches are restarting again. Halls have reopened again. And now, when we go back into our halls, we better start worshiping God in the right way. I am prophesying in the name of Jesus that if we go ahead with a true and a sincere heart for God, and we worship God with a sincere heart, the Holy Spirit is going to visit our churches like never before. And He is going to move whether you are playing music or you don't play music. Whether you are singing or you're not singing, it will not matter to the Holy Spirit, because what He is looking for is your heart. And then when He finds that your heart is sincere towards Him, He will come and He will do what He said He will do, because Jesus said, greater works than these shall you do, because I go to my Father. यीशु मसीह ने कहा है कि इससे बेहतर काम आप करेगा। यीशु मसीह झूठा नहीं है, वो तो सत्य कह रहा है, वो ही सत्य है। उसने कहा है कि इससे बेहतर आप बड़े बड़े काम करेंगे। तो कलीसिया क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि कलीसिया भूल गई थी कि कलीसिया क्यों है। And we make this whole thing about us. We make this whole thing about us shining in the limelight. We are shining in the front of the camera. We are, dazzling our churches. Everybody wants to become better than the other congregation. सबको उससे ज्यादा बेहतर करना है। Everybody kept comparing themselves with another church. वो कलीसिया है, उससे बेहतर मुझे करना है, उससे बेहतर म्यूजिक मुझे बजाना है। ऐसे करके हम भूल गए कलीसिया क्यों है। कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है। कलीसिया परमेश्वर का प्यार है। और कलीसिया परमेश्वर से प्यार करना चाहिए। और जहां पर उसके लिए सच्चा प्यार है, वो आता है। So don't worry about your voices. Don't worry about your voices, how good your voices are. मेरा आवाज सही नहीं है, ये सब कॉन्शियस नहीं रहना है। सिर्फ आपको हृदय से वर्शिप करना है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। Just sitting in His presence, and I don't want to say anything that He doesn't want me to say. लॉकडाउन होने से पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी थी कि सारे कलीसिया बंद हो जाएंगे।
घर घर में आराधना करना पड़ेगा। कितने लोगों को याद है उस भविष्यवाणी को? और ऐसा परमेश्वर ने किया। लॉकडाउन हुआ, कलीसिया बंद हो गए, लोग घर घर में रहकर प्रेयर करने लगे, प्रभु को ढूंढने लगे, ऑनलाइन जाने लगे, ऑनलाइन चर्चेस को देखने लगे। थोड़े लोग भूल गए और दुनिया में वापस चले गए। अभी परमेश्वर और भी कह रहा है, आज अभी लॉकडाउन का समय चला गया है। परमेश्वर ने लोगों को मौका दिया। अभी आपको परमेश्वर कॉल में लेके जाएगा, वापस लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस छोटा सा जगह ये काफी नहीं है। परमेश्वर बड़े जगह पर हमको लेके जा रहा है। लेकिन इस समय, इस टाइम में ऐसा कार्य वहां पर होगा जैसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि हमारा हृदय, आपका हृदय अगर परमेश्वर के लिए ऐसा भूखा है ना, दुनिया की कोई भी शक्ति हमको रोक ना पाएगी। नहीं रोक पाएगी हमको। जितना हम उसको ढूंढते हैं उतना वो हमें मिल जाता है। परमेश्वर की खोज में जो लोग हैं ना, वो उन्हें मिल जाता है। और परमेश्वर को जानना इतना ही नहीं काफी है। इतना अगर आपको मिल गया ना, कितना बड़ा है, जैसा समुद्र का पानी इतना गहरा है, वैसा उसका प्यार, उसकी सामर्थ्य आपको महसूस होगी। और उस जगह पर जो कोई आएगा ना, अगर बीमार आएगा वो चंगा हो जाएगा। और कलीसिया के लोग कभी भी बीमार ना पड़ेंगे। कौन जो अमेन बोलता है उसमें पावर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आप लोगों की, हमारी, मेरी, आपकी तैयारी कर रहा था। God was preparing and God is preparing many sons and daughters in our land to rise up. If you are faithful in these small things here, God will give you bigger things afterwards. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर के वचन में जाएंगे। Deuteronomy chapter 32 verse 11. ओपन करिए और मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ। Deuteronomy chapter 32 verse 11. Praise the Lord. Praise the Lord. तेरे बिन प्रभु कुछ भी ना कर ना सकूं। तेरे बिन प्रभु मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन प्रभु कुछ भी ना कर ना सकूं। तेरे बिन प्रभु मैं कुछ भी नहीं। तेरी उपस्थिति, तेरी उपस्थिति मुझको चाहिए प्रभु। सदा सर्वदा तेरी उपस्थिति, तेरी उपस्थिति मुझको चाहिए प्रभु। सदा सर्वदा। So this verse is about an eagle. How many of you know the eagle? How many of you see the eagles? उकाब। Amen? Amen? हम एक स्क्रिप्चर बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
We know the scripture, they that wait upon the Lord shall mount up with wings as eagles. Isaiah says, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint. जो परमेश्वर के इंतजार में रहते हैं वो उकाबों की तरह उड़ेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। बार बार परमेश्वर उकाबों का क्यों जिक्र कर रहा है? Why is the Lord, introducing or comparing a Christian to an eagle? What is the meaning of it? क्यों ऐसा कर रहा है? ये उकाब ऐसा उसमें खास क्या है? उकाब कितने लोग ऑलरेडी जानते हैं उकाब क्या है? आम्ही कोंकणी भाषेन आई म्हाका पळयता कितें म्हणटाय सिस्टर तूं? उकाब गोवणीक पळयला न्हू गोवण म्हणटात तेका न्हू? वो कितें म्हणटात कोंकणी भाशेन? गरुडा गरुडा आपको एक गाना सिखाया था मैंने, गरुडा सारखे उडू उडूया, गरुडा सारखे उडू उडूया, उडू उडूया, 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 गरुडा सारखे उडू उडूया, गरुडा सारखे उडू उडूया, गरुडा सारखे उडू उडूया, देवाच्या शक्तीने उडू उडूया. आमेन. देवाच्या शक्तीने उडू उडूया. आम्ही पता चला आता कॉल आहे गरुडा कोणता आमच्या. ओके आता आई कॉल मातशें सॉंग म्हटल्यार तिका कॉल आहे. सी एवरीवन इज स्पेशल सो तिका लागून मातशें एक्स्ट्रा. ओके प्रेज द लॉर्ड. जेजू तुजेर कितलो मोग करता पळय, तूं कितले स्पेशल पळय, कितले हजारांनी लोक पळयता हो व्हिडिओ, पूण तुका लागून मातसो तिचेर घाल पळय तो व्हिडिओ लागून. आई आमची कोण पळयती? ही आमची आई. ओके प्रेज द लॉर्ड. देव तुजेर कितलो मोग करता पळय, आमकां हांसयता. प्रेज द लॉर्ड. ओके सो गरुडा उकाब तो एक ऐसा पक्षी है, परमेश्वर ने उसको इस तरह बनाया है, वेरी स्पेशल है और सारे पक्षियों के का लीडर है वो. ईगल इज द लीडर एक्चुअली ऑफ ऑल द बर्ड्स. ओके ये जो उकाब है उसकी खासियत क्या है कि उसका विजन ना बहुत ही शार्प है. ये उसकी नजर ना बहुत ही शार्प है कि ऊंचाई पर वो उड़ जाता है और ऊंचाई से वो नीचे देखता है कि उसका खाना किधर है. आपने कभी देखा तो कोमियो पोस्ताली न तुम्ही त्यांना भियेता रेल्लो अरे म्हजो कोमियो व्हरोंक हा म्हजो पिला व्हरोंक हा म्हण रायट. बा 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 कोमियाक आपयताले बा 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 बियॉन्ड की वयर गोड हा आवाज करता आनी येवन वतले म्हणून आमच्या पिलाक रायट. कित्याक ताका वयर सावन दिसती पडटा खंय हा पळय ते राइट. परमेश्वर ने उसको इतना स्पेशल बनाया है. उसके पंख ऐसे किए हैं कि उसके पंख अगर नीचे आ जाए, यहाँ पर इस एटमॉस्फेयर में अगर आ जाए तो उसके पंख को ऐसा करना पड़ता है, उसको ऐसा उड़ना पड़ता है. लेकिन अगर वो ऊंचे हवा में ऊंच पर्वत पर रहेगा और हवा में उड़ जाए, वो हवा उसके पंखों में ऐसी बन जाती है कि वो एरोप्लेन की तरह. क्या लगता है? I don't know what that means, but it is. That's why an eagle doesn't fly; it soars. If it's flying, it has to fly from down to up. But an eagle soars. Soars meaning इसका मतलब है कि उसके पंखों में हवा भर जाती है और वो हवा पर ही उड़ता है. ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग, इतना स्पेशल उसके पंख परमेश्वर ने बनाया है. हालेलुया. बहुत ही स्पेशल है और परमेश्वर बार बार अपने वचन के द्वारा हमें
हमें क्रिश्चियंस को, परमेश्वर के फॉलोअर्स को उसके साथ जिक्र करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जब एक उकाब, लिसन वेरी केयरफुली, जब एक उकाब अपना घोंसला बनाता है, when he makes the nest to lay its eggs, तातिया गालभाग आई, तातिया गालभाग जेना घोटेर कोत्ता, ओके, मे बी ऑनलाईनचे कोणतरी असा आसतलो कोंकणी भाशेन जायती शिकलेले आसतली, कित्याक आईक लागून मातशें सांगचें पडटा, ओके, बिकॉज एकदा आई सोजमली आखी चर्च सोजमली। प्रेज द लॉर्ड। जेन्ना तेका तांतयां घालूंक जाय आसता, घोंटेर करूंक जाय आसता, तो कसो करता? कैसा उसका घोंसला वो बनाती है, वो कांटे रखती है, गिव्स thorns, very sharp thorns, कांट्याचो घोंटेर करतली, आपली तांतयां घालतात, very sharp things it is putting, very hard twigs, बोडयो इतल्यो तोपता पळय तसल्यो, आनी कांट्याचो तो घोंटेर करता, आनी मागीर उसके बाद जब वो कांटों का घोंसला बनाने के बाद उसके बाद वो सॉफ्ट फेदर्स और इतना नम्र सॉफ्ट कुछ चीजें डालकर वहां पर फेदर्स यानी पंख या कुछ डालकर वो घोंसले पर ऐसे डालती है और बाद में अंडे डालती है, लेकिन उसका बेसिस होता है कांटे। The foundation of the nest is made of thorns. Then it is putting something soft inside. Then puts the eggs. समझ गया? समझ गया ना? When the eggs begin to crack open and the babies come, जब वो बच्चे आते हैं, when the eggs are hatched, okay, वो क्या करती है? अपने उस घोंसले को stir up करती है। ध्यान से सुनना है, this is very important. अपने उस घोंसले को वो स्टर अप करती है, इसका मतलब है कि वो जो सॉफ्ट पंख और ये जो नम्र सॉफ्ट कपड़े जैसा कुछ वो रखती है अंदर, वो स्टर अप करती है और वो कांटे और वो सॉफ्टनेस में उनको रखती है अपने बेबीज को। तो उस बच्चों को वो कांटे लगते हैं, ऐसे ऐसे लगते हैं, लेकिन वो कांटे उसको लगते हैं, लेकिन वो स्ट्रांग होते हैं वो बच्चे। बाद में बच्चों को वहां ही छोड़कर वो ऊंचाई में चले जाते हैं, अपने बच्चों को खाना लाने के लिए ऊंचाई में चले जाते हैं, बाद में देखते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, लेकिन हर समय जब वो दूर है उसकी नजर अपने बच्चों पर होती है। वो बच्चों को अकेले रखते हैं, लेकिन बच्चों को छोड़ते नहीं है। और वहां पर बच्चे रोते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे मम्मी डैडी ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा है। दूर से उनकी विजन इतने शार्प है कि अपने बच्चों पर नजर रखती है। ओके, बाद में जब ये उड़ते हैं तो क्या करते हैं? बोलते हैं, नाउ बेबीज, इट इज टाइम टू लर्न, इट इज टाइम टू लर्न, इट इज टाइम टू फ्लाई। मम्मी, I'm so small. हाँ? उड़ने का समय आ गया है ना बेबी? नहीं, मैं जितना छोटा हूँ, मैं कितना छोटा हूँ, मैं उड़ नहीं सकता हूँ तेरे जैसा, मेरे को पंख भी नहीं आए हैं। ऐसे करते हैं वो, मैं नहीं करना। अरे चले आ जा, मेरे पीठ पर बैठ, मैं तुझे दिखाता हूँ उड़ना कैसा। अरे मम्मी, मेरे को पंख नहीं आ रहे, आ जाना तो मेरे पीठ पर आ जा। तो वो उस बच्चे को एक को लेकर जाते अपने ऊपर डालती है ऐसा, और बाद में एक फ्लाइट लेती है ऊपर से नीचे, ऐसी फ्लाइट लेके आते बच्चों को पीठ पर रखकर ऐसी आती है ना, और मम्मी मुझे डर लगता है, डैडी मुझे डर लगता है, ऐसे जाती है ना, और बीच में ही उनको गिराती है। इसको बच्चे को, अरे बच्चे को छोड़ा, ऐसा छोड़ा, मुझे भाग नहीं है, मैं गिर जाता हूँ, ऐसा बोलता है वो। और जब वो गिरता है तब उकाब जाकर
उसको वापस अपने पंखों पर लेके आता है और बोलता है लेसन नंबर 1 आज का लेसन फ्लाइंग लेसन हो गया है। आ जाना आपको घोंसले में वापस रखते हैं। तो एक को उधर डालता है, दूसरे को लाता है, ऐसे ही करके हर समय वैसे करते हैं। और हर समय बच्चे को लगता है कि मैं अभी गिरूंगा, मैं अभी मरूंगा, मुझे पंख नहीं आ गए। आप बहुत समझदार हैं, आपको समझ में आ रहा है। जितने बार वो ऐसा करता है उतने बार उसके पंख स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। थोड़े दिन के बाद उनके पंख आते हैं, starts to grow, the feathers, the wings start to grow, and one day driving lesson is over, उकाब अपने आप उड़ जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके। Deuteronomy 32 verse 11. As an eagle stirs up its nest, hovers over its young, spreading out its wings, picking them up, carrying them on its wings. Verse 12. So the Lord alone led him, and there was no foreign god with him. Okay? पढ़िए प्लीज हिंदी में। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता है और उसके संग कोई पराया देवता ना था। हालेलुया। किसके बारे में बात करता है? समझ गए आप किसके बारे में बात करता है? इज़राइल के बारे में बात करता है। वर्स 10 में लिखा है, He found him in a desert land and in the wasteland, a howling wilderness. He encircled him, instructed him, he kept him as the apple of his eye. हालेलुया। पढ़िए वो 10। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आग की पुतली के समान उसकी स्तुति रखी। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर इज़राइल के बारे में बात करता है कि परमेश्वर ने उसको ऐसा पाया, ऐसा बाहर निकाला। वो कहाँ था? Where was the people of Israel? God got them out of that place. God encircled them. वैसे ही आपको परमेश्वर ने कहाँ पर पाया है? आप कहाँ थे? अभी आप ही, ये आत्मिक इज़राइल आप ही है। परमेश्वर इस समय ये वचन के द्वारा आपके साथ बात कर रहा है। Where were you? What were you doing? In what condition were you? In what sinfulness were you? आप कैसे पाप में थे? आप कैसे अंधकार में थे? आप कैसे कीचड़ में जी रहे थे? फिर भी परमेश्वर ने आपको पाया, आपको ढूंढा, आपको पाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आगे पीछे घेर रखा है। God has set you behind and before, and He has put His hand upon you. परमेश्वर ने आपके ऊपर हाथ रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको संभाला है। God has instructed you. परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, एक नया जन्म दिया है, आपको संभाला है। हालेलुया। आपके बारे में बात करता है, मेरे बारे में बात करता है। हम कहाँ थे? एक जंगल में थे, हमारे पाप में थे। हालेलुया। शैतान के हाथों में थे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा हमको गले लगाया और अपने पास ले आया। और अगर आपको लगता है मैं अभी भी जंगल में हूँ, अभी भी पाप में हूँ, वही परमेश्वर आपके ऊपर देख रहा है। If you are feeling you are still bound in sin, if you are still feeling you are bound in bondages, addictions, the Lord is still looking at you and He is saying, I want to hold you in my arms, come to me. परमेश्वर की नजर हर एक पर रहता है। उसकी नजर अपने बच्चों पर रहती है, जैसे उस उकाब की नजर अपने बच्चों पर रहती है। हमको लगता है कि हमारा परमेश्वर दूर है, लेकिन वो दूर नहीं है, उसकी नजर हमारे ऊपर है। हालेलुया। शायद
एक उकाब अपने बच्चों के पास आने को देर करेगा, लेकिन परमेश्वर देर नहीं करता है। God is not delaying in coming to you. In fact, when you say Jesus, He comes. You may not feel it, you may not see it, but He is there. आप अगर महसूस भी नहीं करते, आप अगर देख भी नहीं पाते, लेकिन वो है जब आप उसको बुलाते हैं। उसकी नजर आपके ऊपर है, जैसे उकाब की नजर अपने बच्चों पर रहती है। So God is talking about Israel, God is talking about you, He is talking about me. हम थे कीचड़ में, आप थे कीचड़ में, परमेश्वर ने नजर डाली आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हमको गले लगाया, अपने पास रखा, हमारे आगे पीछे वो आया और ऐसा पकड़ा हमको। And then He says, as an eagle stirs up its nest, जैसे वो उकाब अपने घोंसले को stir up करता है। वो stir up का मतलब क्या है? हिलाकर अपने बच्चों को, हाँ, वो घोंसले को हिला कर अपने बच्चों को क्या करता है? बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है। बच्चों के ऊपर मंडलाता है। यह परमेश्वर की खासियत है। शुरुआत में उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा पानी पर मंडलाता था। He loves to hover upon us. You know, He was here, He is still here, He is hovering upon us here today. Yes. हालेलुया। अभी भी वो मंडलाता है यहाँ पर। अगर मैं कुछ गलत बोलूंगी तो वो दूर हटेगा, लेकिन अगर मैं वचन बोलूंगी आपको तो परमेश्वर मंडलाता रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा पानी पर वो मंडलाता था और आज इस वचन पर वो मंडलाता है। हालेलुया। देखो, आप ये कलीसिया है ना, आप लोग ना ऑलरेडी गहराई में जा चुके हैं, परमेश्वर की आत्मा की गहराई में जा चुके हैं। Excuse me, but I'm going to just speak what the Lord is leading me. Already आप बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है, आप ऑलरेडी गहराई में जा चुके हैं। अगर आप सोचेंगे कि दुनिया में जाकर आप मिलावट करेंगे, ये मिलावट परमेश्वर को अच्छी नहीं लगेगी। आप खो देंगे सब कुछ जो परमेश्वर ने आपको दिया है। ये शैतान के साथ या संसार के साथ मिलावट करने का समय नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत ही नजदीक है। दुनिया में अंधकार बहुत ही हो रहा है इस समय। रोशनी बनकर आप जाएगा, रोशनी बनकर आपको जाना है। हालेलुया। हमारे बारे में सोचने की अभी समय नहीं है, हमारे बारे में सोचना। हम ये करेंगे, वो करेंगे, बंगला बनाएंगे, ये करेंगे, प्रॉपर्टीज लेंगे, ये करेंगे, ऐसा सोचने का समय नहीं है। यह समय है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यह समय है आत्मा को बचाने का। हालेलुया। हमको आत्मा को बचाना, हमको लोगों को लाना यीशु मसीह के पास। ये समय यही है। हालेलुया। परमेश्वर को मिलावट अच्छा नहीं लगता है, आपको भी मिलावट अच्छी नहीं लगती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप पर नजर रखता है, और जैसे एक उकाब अपने घोंसले को स्टरअप करता है, वो हिलाता है, क्या होता है उसके बाद? जो नम्र है, सॉफ्ट है, और जो कांटा है, वो सब मिक्स हो जाते हैं। जब आप यीशु मसीह के पास आए, आपको कुछ तकलीफ ही नहीं हुई, सब कुछ अच्छा था, राइट? सॉफ्ट, क्योंकि आप बेबीज थे। ओह, कितना अच्छा लगता है कलीसिया को आना, कितना अच्छा लगता है। संडे कब आएगा। थोड़े दिन के बाद, थोड़े महीनों के बाद, ये सिस्टर वो ब्रदर, ये सिस्टर वो ब्रदर, वो कोता बाद में हम भूल जाते हैं। ये सब कुछ कांटे लगते हैं, वो सॉफ्टनेस चली लगे। वही बोल मका कितली बोरी कुंताली, एक मताली गोटताली, आता कोरी ना, आता फोन के ना, मचे हबर के ना, इरण कांटे लगता, राइट? कांटे लगता। और जब कांटा लगता है तो परमेश्वर का कुछ तो एक मोटिव है आपके ऊपर, कुछ तो उसने निर्णय किया है कि इस बच्ची को मैं बढ़ाऊंगा, इसलिए लोग आपके विरुद्ध जाएंगे। हालेलुया। इसलिए लोग आपके विरुद्ध जाएंगे, इसलिए आपको कांटे लगेंगे, वो सॉफ्टनेस कम लगेगी और वो ज्यादा कांटे लगेंगे। लेकिन ऐसा होता होता आपका
जो पंख है वो स्ट्रांग होता है, आपका जो बॉडी है, आपका जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो स्ट्रांग होता रहता है। हालेलुया। सिर्फ वो जो छोटे बच्चे हैं ना उकाब के, तो द इग्लेट्स व्हिच आर देयर, दे आर ट्रस्टिंग द पेरेंट। रोते हैं ये क्यों करते हैं, मेरे को कांटे लगते हैं, लेकिन उनको और कोई सहारा नहीं है, सिर्फ वही है, सिर्फ वो उकाब है, सिर्फ वो अपना पेरेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। समझ में आया? किसके पास जाकर रोएंगे? कांटे लगता है तो अपने बाप को ही बोलेंगे ना, अपने माँ बाप को ही बोलेंगे ना। तो वैसे ही जब ये कांटे लगते हैं, हमको किसको पुकारना है? प्रभु यीशु को पुकारना है, हमारे परमेश्वर पिता को पुकारना है। हालेलुया। और वो कहेगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैंने ऐसे किया है क्योंकि मैं आपको स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ, मैं आपके पंख को स्ट्रांग कर रहा हूँ, क्योंकि आपके ऊपर एक बुलाहट है। हालेलुया। मैं आपको यूज करना चाहता हूँ ताकि आप ऊपर देखकर चले, ऊपर मुझ पर नजर डालकर चले। हालेलुया। उकाब अपने बच्चों के ऊपर, घोंसले के ऊपर मंडराता है, देखता है अपने बच्चों को, क्या चाहिए मम्मी मुझे क्या चाहिए, हम हमेशा क्या करते हैं? अरे बस कर यार, कितना बात करते हैं। मैं जानता हूँ ना क्या देने को आपको। मुझे मांस चाहिए, मुझे कीड़ा चाहिए। नहीं, बच्चे बोलते इग्लेट्स, उकाब के, आप कीड़ा नहीं खाते। तो मम्मी डैडी बोलता है, देखो मैं मांस ला रहा हूँ, तो आपको थोड़ा इंतजार करना है, ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर लाना है, तो आपको रुकना है। तो बच्चे रुकते हैं, ना करते हैं, ऊपर से नजर डालकर नीचे जाते मच्छी को पकड़ती है। आज मांस नहीं था, आज फिश मिला, फिश। चलेगा दे दो, और वो खाते हैं। और जैसे वो खाते हैं ना, वो मंडराता है, oh my children, so beautiful, my children are so happy eating this fish. Thank you mommy, thank you daddy. मंडराता है, छोड़ता नहीं है अपने बच्चों को। हालेलुया। अरे परमेश्वर का प्यार, आज तो वैलेंटाइंस डे है, सब लोग वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। हाँ, परमेश्वर का प्यार क्या है? हालेलुया। चकले यीशु को चकले, वो है मीठा रे। चकले यीशु को चकले, वो है मीठा रे। His love is so sweet, वो इतना मीठा है। देखो अपने आप क्यों बोल जाते हो? We have to open our eyes to His love. उसके प्यार को देखो। सिर्फ करेगा। परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि जैसे उका अपने बच्चों को, उसका घोंसला को ऐसा हिलाता है, स्टर अप करता है और उसके ऊपर मंडराता है, तो मैं भी आपके ऊपर मंडराता हूँ। हालेलुया। मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं है, मैंने तुझे कभी त्यागा नहीं है। मैं आपके पास हूँ, आपके ऊपर हूँ, आपके साइड में हूँ, आपके पीछे हूँ, आपके आगे हूँ। I have surrounded you, I have encircled you. हालेलुया। Then it says this. As an eagle stirs up its nest, how it's always young, spreading out its wings, taking them up, carrying them on its wings, so the Lord alone led him. And there was no foreign god with him. जैसा ये उकाब अपने बच्चे को अपने पंखों पर लेता है, अपने पीठ पर लेता है, और ऐसा उड़ जाता है, उड़ते उसको छोड़ देते हैं। जब वो छोड़ देता है, वो नीचे गिर जाता है, अकेलापन महसूस होता है। आपको हुआ कभी? आपको नहीं हुआ तो कुछ तो गड़बड़ है।
हुआ कभी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा हुआ है, ऐसा लगता है अरे कितनी हवा है, कितना अच्छा लगता है, मम्मी के पीठ पर, डैडी के पीठ पर कितना अच्छा लगता है। मुझे मोटरसाइकिल चलाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी चलाने की जरूरत, मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। इतना अच्छा लगता है, आंखें बंद करके मजा लेते हैं। अरे वाह क्या जिंदगी चल रही है यार, कुछ तो फिक्र नहीं है, खाने की परवाह नहीं है, पीने की परवाह नहीं, you just enjoy life and there is no trouble at all। आंखें बंद करके ऐसा एंजॉय करते हैं। अचानक ऐसा लगता है अरे अचानक ऐसा लगता है परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है और आपको लगता है मैं गिरता हूँ, मैं गिरता हूँ। क्यों छोड़ा मुझे, मेरा जीवन कोरा और हम ऐसे डिप्रेशन के गाने गाते हैं। जिंदगी का सफर है, अरे ऐसे डिप्रेशन का गाना गाते हैं, एक दूसरे को दोष देते हैं, एक दूसरे को कांटे लगाते हैं। अभी कांटे लगते थे, अभी हम दूसरों को कांटे लगाते हैं। हाँ, इतना डर लगता है। और डर भी ऐसा एक चीज है, ऐसा लगता है कि आप गिरेंगे, और अगर आप सोचेंगे कि आप गिरेंगे तो सच्चाई में आपको ऐसा लगेगा रियली, बिकॉज फियर इज अ वेरी डेंजरस थिंग। और मैं ऐसा अभी डर के विषय में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है, डर लगता है, अकेलापन महसूस होते हैं, हमको लगता है कि हम गिर जाते हैं। और उस समय हमको कंप्लेन नहीं करना है, इसलिए परमेश्वर ने ये वचन को हमको दिया है। God has given His precious word to us. Know this word and you will be set free। ये वचन को आप जान जाएंगे और वचन ही आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, अगर आप अकेलेपन महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका पैसा चला गया, सब कुछ चला गया, अकेलापन महसूस करते हैं, एक याद रखना, परमेश्वर बहुत ही नजदीक है। तुरंत आपके पास वो आएगा, आपके पंखों, उसके पंखों के ऊपर आपको लेके चलेगा, फिर से वापस घोंसले में जाएगा। हालेलुया। घोंसले में कांटे लगेंगे, घोंसले में कांटे लगेंगे, लेकिन आपको हमेशा घोंसले में रहने के लिए परमेश्वर ने रचा नहीं है। हालेलुया। Every time you're not going to be in the nest, you're coming out of the nest, because one day you're going to fly and it will not matter whether the thorns are there, whether the softness is there, because you have learned to adjust in the presence of God. हालेलुया। बात समझ में नहीं आई ना? देखो, परमेश्वर ने उकाब के पंख ऐसे किए कि अगर वो चट्टान पर खड़ा होता है, सिर्फ उसको चट्टान पर खड़ा होना है। Do you know that? When he wants to soar high, he has to stand on the rock. उसको चट्टान पर खड़ा होना है। हालेलुया, हालेलुया। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। परमेश्वर हमारा चट्टान है। अगर आप उसके ऊपर, उसके संग खड़े हो जाएंगे तो क्या होता है? पवित्र आत्मा की हवा आ जाती है। जब पवित्र आत्मा की हवा आ जाती है, आप सिर्फ अपने पंखों को ओपन कीजिए। इसका मतलब है समर्पण। हेलो, ओपनिंग द विंग्स ऑफ एन ईगल इज समर्पण। हालेलुया। हमारा जीवन अगर हम समर्पण करते हैं, सरेंडर करते हैं, वो आपका समर्पण आराधना बन जाता है। और जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की हवा हमारे पंखों में आ जाती है और हम उड़ जाते हैं उकाबों की तरह। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर ने क्या किया है? आपको पवित्र आत्मा पर निर्भर किया है। वो हवा है पवित्र आत्मा। उस हवा के बिना आप उड़ ना जाएंगे। आप सोचेंगे ना उड़ना, नीचे से ऊपर आपको उड़ना है, नहीं हो जाएगा। बाबा, आपको चट्टान तक जाना है। Are you getting this? This is a very beautiful message for you. आपको चट्टान पर जाना है, चट्टान पर खड़े
you stand upon the rock, the wind of the Holy Spirit is going to come. It is going to fill up your wings and you are going to fly. पवित्र आत्मा की हवा आ जाएगी और पवित्र आत्मा के द्वारा आप उड़ जाएंगे और जाएंगे उस जगह पर जहां पर कौवे नहीं जा सकते, कुमड़ी नहीं जा सकती. No, this is so beautiful. आप कुमड़ी नहीं है, आप कौवा नहीं है, आओ गाबों के समान. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया. नल्ला नल्ला ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. इतना अच्छा ना, अच्छा है ना परमेश्वर. Amen. Oh, the lover of our soul. हमारे आत्मा का प्रीतम है वो, हमारा पिता है वो. जैसा वो प्यार करता है दुनिया में कोई भी हमसे प्यार नहीं कर सकेगा. लेकिन जिसके पास, जिसके हृदय में परमेश्वर है, वो सच्चा प्यार कर सकता है. If you have Jesus in your heart, when you get married, you love your wife with the love of God. If you don't have Jesus, you will just love with flesh, and flesh is for a little while, it will go. If you have Jesus, you will love her forever. यीशु मसीह के प्यार के बिना आप अपने पति से प्यार नहीं कर सकते. आप अपने पत्नी से प्यार नहीं कर सकते. इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये शरीर बहुत ही गड़बड़ी है. गलत करता है ये शरीर बार बार. लेकिन जो चट्टान पर खड़े होते हैं ना, उनका जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा. हमेशा सुरक्षित रहेगा. हालेलुया. चट्टान पर जब खड़े होगा आपका विश्वास इतना होगा कि दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हिला नहीं सकेगी. इस बहन ने बहुत कोशिश की. खड़े हो जाओ सिस्टर. संडे को आने को नहीं मिलता था. उसको काम था, उसको नौकरी थी. उधर ही रहे. उसको नौकरी थी और मैं सोच रही थी उसका फोन भी नहीं है, इधर भी नहीं आती थी. बहुत ऐसा मन में आया, उसके बारे में प्रार्थना भी किया. और उस दिन उसका फोन आया, बोला कि मैं नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि जो नौकरी है मुझे संडे को छुट्टी नहीं दे रही है, मुझे प्रार्थना को आना है. इसलिए उसने अपना काम छोड़ दिया है. क्योंकि संडे को छुट्टी नहीं मिलती, प्रार्थना को आने को नहीं मिलता, इसलिए उसने अपनी नौकरी को छोड़ दिया है. आपको लगता है परमेश्वर उसको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर उसको अच्छी नौकरी देगा. परमेश्वर उसकी सारी जरूरतों को पूरी करेगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए एक स्टेप लिया है. उसने चट्टान पर अपना पैर रखा है. वो चट्टान है यीशु मसीह, नहीं छोड़ेगा. His presence here. You are eagles. You are eagles. And eagles don't complain about the thorns. कांटे के बारे में उकाब कभी गुनगुनाहट नहीं करता. नहीं करना है आपको. कभी कभी रोना आता है, हाँ, क्योंकि कांटे दुखते हैं ना, तो रोना आता है. लेकिन उस पर कभी गुनगुनाहट नहीं करते उकाब. रोंगे जरूर हम, क्योंकि ये मांस है ना, ये मांस लहू है ना, कमजोर है, लेकिन आत्मा स्ट्रांग है. हालेलुया. जीसस सेड माय स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लेश इज वीक. शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा राजी है. हालेलुया, हालेलुया. आप उकाब है और आप पर परमेश्वर ने नजर डाली है. Hallelujah. मंडराता है आप पर, आपको स्ट्रांग बना रहा है. आपका समय आ रहा है जब आपको उड़ना है. Some of you have already started to fly. Already you started to fly in the spirit. आत्मा में आप ऑलरेडी महसूस करते हैं आत्मा की हवा. करते हैं ना. हालेलुया, हालेलुया. You can imagine what God wants to do with you. With just a little bit, you'll come and sing a little bit here, and God's presence begins to move.
Hallelujah. Hallelujah. When you open your mouth to sing, जब आप गाना गाते हैं, वचन बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, जब आप बोलते हैं वो गाना, तब आपके आवाज से परमेश्वर का एक अभिषेक आएगा, परमेश्वर का आवाज लोगों तक पहुंचेगा. When you beat that drum, there's an anointing. It's beautiful. You're not doing it in the flesh. You're doing it in the spirit. Because in the flesh, hands will pain. But in the spirit, you can go on for 2 hours like that. Amazing. That's the Holy Spirit. वो आत्मा की हवा है जो आपके अंदर है और आप उड़ेंगे. Maturity in the spirit is not counted by the years that you have been a believer. Maturity in the spirit is measured by your relationship that you have with God. How much you want to seek after Him, that much you will mature faster. समझ में नहीं आया क्या बात करती सिस्टर? आत्मा में मेच्योरिटी को क्या बोलते हैं? एक बार में ये वर्ड ही नहीं आता है, क्या बोलते हैं उसको मेच्योरिटी? हाँ? पोजीशन? समझदार होना. नहीं, हाँ? समझदार होना. समझदार होना. बढ़ना आत्मा में. उन्नति उन्नति. उन्नति. ओके. सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ. आत्मा में जो मेच्योरिटी होती है, इसका मतलब है आत्मा में बढ़ना, आपका ग्रोथ, आपका बढ़ना. ठीक है. तो आत्मा में बढ़ना ये है जो अपने एज से नहीं होता है. कितने साल आप एक विश्वासी है इस पर आधारित नहीं है आपका बढ़ना आत्मा में. 20 साल का विश्वासी हूं मैं, लेकिन आपके जीवन में अगर प्यार नहीं है, आप एक छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा है आत्मा में. इसलिए आत्मा में एज नहीं है, एज उम्र नहीं है आत्मा में. योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके आत्मा में बढ़ना. कितना स्क्रिप्चर आप जानते हैं इस पर आधारित नहीं है. बहुत सारे लोग स्क्रिप्चर जानते हैं लेकिन प्यार नहीं करते, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं. You young people, God has seen you, who are much more mature than the people who have been believers for so many years. इतने साल लोग विश्वासी हैं, उससे ज्यादा आपकी आत्मा में ग्रोथ है. आत्मा में देखा जाए तो उम्र पर आधारित नहीं है. Are you getting this what I'm saying? Yes. इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्राउड हो जाए, घमंड हो जाए हमारे अंदर और हम बोले कि देखो परमेश्वर हमें यूज करता है. तुरंत तो आपको नीचे जाना पड़ेगा. जितना परमेश्वर हमको यूज करता है उतना आपको घुटनों पर जाना है. वो बड़े हम घटे. He increase we decrease. कोई भी हमको जरूरत से ज्यादा प्रेज कर रहा है, ज्यादा कुछ बातें अच्छे अच्छे बोल रहा है, तो तुरंत तो हमको पता चलना है कि परमेश्वर हमको नम्र बना रहा है. घमंड करने की बात नहीं है. जितना परमेश्वर हमको यूज करेगा उतना हमको नम्र होना है. और ये है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ये है आत्मिकता में बढ़ना. जितना नम्र है उतना परमेश्वर के सामने बढ़ते हैं. I don't know why I spoke this, but it is important to speak this. Hallelujah. चट्टान पर खड़े रहो, परमेश्वर की आत्मा की हवा आ जाएगी और आप उड़ेंगे उकाबों की समान. हालेलुया, हालेलुया. खड़े हो जाओ. For the Lord has spoken His word. Beautiful, 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 beautiful. हाथों को खोलिए बस. इमेजिन करो, आपके मन में लाइए इस समय आपका जीवन कहाँ था. आप घोंसले में थे, छोटे बच्चे के समान, ख्वाबों के बच्चे के समान. इतनी सारी तकलीफें आ गई. पहले ऐसा लग रहा था कलीसिया कितनी अच्छी है,
विश्वासी होना इतना अच्छा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बाद में कांटे चुभने लगे, बाद में लोग हमें डांटने लगे, हमको बुरा बोलने लगे. People started hating us, started gossiping about us. हमारे बारे में बात करने लगे, कांटे लगने लगे, हमको तकलीफ आने लगी और हमको ऐसा लगा हम क्यों पैदा हो गए हैं, हमको जीना नहीं है, हमारे परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है. लेकिन परमेश्वर आपको कहता है, जब आप उस कांटों में चलते थे, जब आपको वो कांटा लगता था, तब भी मैं तुझ पर मंडराता था, तब भी मैंने आप पर नजर डाली थी, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं है. अपने घोंसले को उसने हिला दिया है ताकि आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है. हालेलुया, इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग. उसके बाद आपको लगा कि परमेश्वर के बुलाहट मेरे लाइफ पर है, परमेश्वर की भविष्यवाणी मेरे लाइफ पर है, मुझे उड़ना है. लेकिन जब उड़ने का समय आ गया, परमेश्वर ने ऐसा किया कि आपको लगा कि मैं गिर रहा हूँ, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सबने मुझे छोड़ा है, परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ा है. लेकिन उस समय में भी उसकी नजर आप पर थी और वो आपको सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा था ताकि आपके पंख स्ट्रांग होना है. That's why he was training you. अभी तक वो ऐसा कर रहा है हमारे लाइफ में. अभी तक ऐसा लगेगा कि मैं अकेला हूँ, मुझे सबने छोड़ दिया है. लेकिन परमेश्वर कहता है, जैसे उखाब अपने बच्चों को अपने पंख के ऊपर लेकर चलता है और उसको सिखाता है, वैसे ही मैंने तुझे मेरे पंख के ऊपर ले आया हूँ. अभी तक मैंने ले आया हूँ. I have still now brought you here on eagle's wings. Yes, amen. और आप उड़ेंगे. Come on, open your hands. उखाब जब सीखता है उड़ना, जब चट्टान पर खड़ा होता है, आपको चट्टान पर खड़ा होना है, ऊंचाई तक जाना है, आपको चढ़ना है उस पहाड़ पर. You have to go there. You have to go there. आपको प्रार्थना करना है, आपको ढूंढना है उसको, उस चट्टान को ढूंढना है. You have to search for that rock. You have to search for Yeshua. And when you find him, you stand with him. और जब आपको यीशु मसीह के संगति आप करते हैं अकेले में, तब आत्मा की हवा आ जाएगी, आपके पंखों को छुएगी और आप उड़ने लगेंगे. तब दुनिया कितना नीचे दिखेगा. The world is so far away from you. वो कौवे जो काव करके आपके पीछे आते थे, आप कितने दूर हैं. वो सब जानवर कितने दूर है, लेकिन आप कितना ऊंचा है. आप उड़ रहा है, पवित्र आत्मा के संगति में आप उड़ रहा है. Come on, lift up your hands. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord. हम उड़ेंगे उकाबों की समान, हम उड़ेंगे उकाबों के समान. इस दुनिया की कोई भी विपत्ति हमको छू नहीं सकेगी, इस दुनिया की कोई भी महामारी हमको छू नहीं सकेगी. हालेलुया. इस दुनिया के कोई भी संकट हमको छू नहीं सकेगी. हाँ, लहरें आएंगे, हाँ कांटे आएंगे जिंदगी में, हाँ बहुत सारे जानवर आएंगे, बहुत सारे शैतान आएंगे, लेकिन हम अगर चट्टान पर हैं, हम उड़ जाएंगे उकाबों के समान. Come on, the Lord is here in this place. Let's worship the Lord. Come on, अपने मुंह को खोल कर तड़प धन्यवाद कीजिए. Let's just thank him for his presence in this place. Rumashto reba sovrashto nemeni aproshti rashko robosto. आप स्वर्ग की भाषा बोलेंगे. जितना आप ऊंचा चढ़ते हैं परमेश्वर के पास, उतना आप स्वर्ग की भाषा बोलेंगे. Come on, open your mouth, brother. Open your mouth, sister. Rakunda prashto mandrista maproshta men rahata Yeshua. Raboshi lekia prosheli hamaro shama proshie. Raskonamo nama prushti abraho na prasena. Rasho talabasiye. Raise them up, Lord. Make them strong, Lord. उनको strong बनाइए पिता. Hallelujah. इस बच्चों के पंखों को strong बनाइए पिता. उनको उड़ना है. You are called with a high calling. आपको ऊंची बुलाहट से बुलाया
Fly high above everything, fly high, soar high like an eagle. ब्रश करे में उकामों के समान उड़ो, आराधना में उड़ो, हालेलुया, समर्पण में उड़ो। इस समय आपको समर्पण करना है। Somebody needs to surrender their problem to the Lord. Come on, समर्पण कीजिए अपने आप को उसके सामने। Spread your wings, spread your wings. समर्पण कीजिए अपने पंखों को, खोलिए उसके सामने। राष्ट्र में मदरोष्टे रमसे, रेमोदोष्टे में रेमसोर निश्चे, यीशु रखे मदरोष्टे रे बेटी। समर्पण कीजिए अपनी बुरी आदतों को। You have bad habits, you have bad habits. आपको बुरी आदत है, वो समर्पण कीजिए। आपको ज्यादा बोलने की आदत है, आपको दूसरों के बारे में चुगली करने की आदत है, आपको कुछ भी, शराब की आदत है, स्मोकिंग की आदत है, कुछ भी है वो दीजिए। आपने किसी का गुस्सा आपके अंदर रखा है, वो भी समर्पण कीजिए। चट्टान पर है आप। Jesus. मेरा जीना मरना केवल तेरे लिए, Yes, Lord. मैंने जीवन तेरे नाम की है। मेरा जीना मरना केवल तेरे लिए है। मैंने जीवन तेरे नाम की है। कहीं चलते चलते थक ना जाऊं, तू सामर्थ मुझको दिला। कहीं चलते चलते थक ना जाऊं, तू सामर्थ मुझको दिला। प्रभु तूने मुझे जाना है, मेरे दिल को पहचाना है। मेरा दूरी से पहचानता है। प्रभु तूने मुझे जाना है। मैं हूँ मिट्टी का पुतला, तू है कुम्हार मेरा। जैसे चाहे वैसे मुझको चला। मैं हूँ मिट्टी का पुतला, तू है कुम्हार मेरा। जैसे चाहे वैसे मुझको चला। कहीं चलते चलते थक ना जाऊं, तू सामर्थ मुझको दिला। कहीं चलते चलते थक ना जाऊं, तू सामर्थ मुझको दिला। लॉर्ड जीसस, तूने मुझे जाना है प्रभु, मेरे पापों को पहचाना है। The Lord knows you. He knows everything about you. Why hold back from Him? Give it all to Him right now. वो तो सब कुछ जानता है, उससे क्या छुपाना। सब कुछ समर्पण कीजिए उसको। वो रोका है, जब आप उसको पुकारेंगे वो तुरंत आएगा। चोट मुझको लगी, दर्द तुझको होता है। मेरे आंसू से पहले तेरे आंसू बहते हैं। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है। मेरे आंसू से पहले तेरे आंसू बहता है। मेरे आंसू के पहले तेरे आंसू बहता है। अब पिता तू है मेरा, खुदा तू
Jesus. Lord, He's your Father. He's the lover of your soul. Nobody loves me like you love me, Jesus. Nobody loves me like that. Only you, only you, only you, Jesus. Come on. Just thank Him for His love. धन्यवाद करो उसके प्यार के लिए. धन्यवाद करो उसके वादों के लिए जो उसने किया है आपकी जिंदगी पर. वादे को निभाने वाला परमेश्वर यहाँ पर है. आपके आंसू को पूछने वाला परमेश्वर यहाँ पर है. He will keep His promise. He will honor. Jesus. Oh. आपके हाथों को ऊपर कीजिए. मैं आपके प्रार्थना के जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ अभी. I'm going to pray for your prayer life right now. It is enough that where you are, आप जहाँ पर थे वहाँ से परमेश्वर आपको ऊंचा लेना चाहता है. It's no longer going to be the way you were praying before. God is giving you a new tongue. God is giving you a new vision. God is giving you a new hearing right now. परमेश्वर आपको नया दर्शन दे रहा है. परमेश्वर आपको अन्य भाषा दे रहा है. एक नई भाषा दे रहा है. Hallelujah. Come on, receive that in the name of Jesus. वो आपको बुलाएगा, अकेले में बुलाएगा. He's going to call you alone. He's going to call you to sing alone. He's going to call you to read the word alone. Hallelujah. अकेले में बुलाएगा. Hallelujah. Come on, receive it. Many of you are receiving the prayer mantle right now. प्रार्थना का एक चादर आ रहा है आपके ऊपर. प्रार्थना का चादर आ रहा है आपके ऊपर. Come on, take the mantle of anointing of prayer right now. Yes, 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 Lord. Yes, yes. Receive it, receive it. Come on, open your mouth. Open your mouth. Restore him. Restore him. Restore him in the name of Jesus. Restore the tongue. The higher level. Come on, open your mouth. Yes, yes. So nothing can stop you. When God says you can do it, you can do it. Open your mouth. Come on, Holy Spirit, touch. Fire on your tongue right now. Oh yes, God, yes, God, yes, God. Hallelujah, hallelujah. Come on, restore, 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 restore. Come on. Yes. Yes. Yes, come on. If you rise up in prayer, you will rise up in the anointing. प्रार्थना में बढ़ेंगे तो अभिषेक में बढ़ेंगे. More strength, more strength, more strength, more spiritual tenacity. Yes. Yes. Receive it, brother. Receive it. Yes, yes. Come on.
person who has lifted up their hands, seeking for their prayer life to be stronger. जिन्होंने हाथों को उठाया है अपने प्रार्थना के जीवन के लिए, इस समय परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ जाए। परमेश्वर एक नई सामर्थ आपको दे। परमेश्वर एक नया अभिषेक आप पर उंडेल दे। परमेश्वर एक नई अग्नि आप पर उंडेल दे। आपका घर बदल जाए। आपका घर में जो भी कमरे हैं वो पवित्र अग्नि में भर जाए। शैतान का कोई भी चीज आपके घर में नहीं रहेगी। आपका बाहर आना, अंदर आना परमेश्वर ब्लेस करेगा। जब आप बाहर चलेंगे परमेश्वर का जुबान, आपका जुबान एक होगा। आपकी जुबान से अन्य भाषा आएगी। आप अन्य भाषा में गाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के बारे में आपके जुबान पर आएगा। आपका प्रार्थना पहले की तरह नहीं। सारा आलसीपन को यीशु मसीह के नाम में हम दूर करते हैं। सारा laziness, lethargy, spirit in Jesus' name, I rebuke that from your life. Oh yes, you hear the voice of the Lord calling you. The Lord give you grace to obey His voice. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप उसके आवाज को सुनेंगे, आवाज को पहचानेंगे और उसके वचन के आधारित आप चलेंगे। My God, I bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ivarekha Adonai veishvarekha. Yair Adonai panavelekha. Rekonekha. Isa Adonai panavelekha. Yasemlekha Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His countenance towards you and give